megalayapost.news Nadu bala shimti ke sorkar BJP ha usnem arajar khatsau bensensyar hapo kari ha ka jingelam Narendra Modi kum menteri rangba kari ka sorkar kami kalathe shibun ki kampan roy na ka benta ki jilla shate lammingi kari India ong uniten gat kari kum menteri ka sorkar pedang badai pe yakna road transport and highway aba ajing kren menta kasngi ha ka lempung North East India Infrastructure Summit and Exhibition kabla long Halariti International Center Shillong ula ong ru banadu bayok bat ka sorkar ka BJP ka phaikmat kerpang halor ki kampan roy beper ha kari India batla phaikmat kerpang ru sha ka jalla shatailam mengi kari India kum menteri ka sorkar pedang badai pet yakatna road transport and highway ula ai kublai kerpang ru ya ki menteri rangba beper bat ki menteri sorkar ki bla shimenta ha kane ka jingya kenduk lang bat ukrmen scam balang ba kane ka jingya kenduk lang dangla ban keren seni halor shibun ki kampan roy ki badon kam ha ki jela shatai lammingi kari India kam tam ha ka bayadei bat ka jingya don kam ya ka lenti ki singkin ki balong ha ka jing don kam ba hakmat upaj ba ula kren ru halor shibun ki lat ki lenti ban kentiu ya ka koj ka kya ka pule ka puthi bat ki kam rap ki kam riang baki pajba ki don kam bat lada klem ka surok pat ki nong shong snong kin nom la ban kiu shaprang ha kalyang baro kari Amerika ka dei kari ka bariuspa dei namar ba ka biang lut ki lenti ki singkin ne ki surok ong ugat kari bat bernap ru da ka ba ong na kalyang ka sorkar India ha ka jingsan shar ka BJP kan phaikmat lut shabaro ki jella lengba ki kampan roy pantam ka surok bat ka jingang not ka long ba kari India ka dei ka wei na kari ka bakiu state ha kalyang ka kampan roy hapo ka prthei ula bernap सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर समिट के ऑर्गेनाइज करने के लिए चीफ मिनिस्टर संगमा जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। 2014 में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जब बने तब उन्होंने दो चीज़ें निश्चित की। सबसे पहली बात यह कि हम देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दूसरी प्रायोरिटी उन्होंने तय की कि हम नॉर्थ ईस्ट को विकास में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और मुझे खुशी है कि ये दोनों दृष्टि से जो डेवलपमेंट हुई है वो सब आपके सामने है। नए एयरपोर्ट आ रहे हैं, रेलवे आ रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो भविष्य में नॉर्थ ईस्ट के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है उसमें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विदाउट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर we can't get capital investment and industry. Without industry and capital investment, we cannot create employment potential. And without employment potential, we cannot increase per capita income. And without increasing income, we cannot eradicate the poverty. गांव, गरीब, मजदूर, किसान की अगर प्रगति करनी है तो उसको रोजगार देने की आवश्यकता है। No philosophy can be taught to empty stomach. ये विवेकानंद जी ने कहा है। और इसलिए आने वाले समय में पूरे विश्व में जो चर्चा होती है वो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की होती है। भूटान के प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत यूनो में की और उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स को हमने कैलकुलेट करना चाहिए। सुखांक का मतलब यही है कि अच्छी हेल्थ सर्विसेज चाहिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन चाहिए, हमारे किसानों के लिए, कामगारों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए और एक प्रकार से गरीब आदमी जो है वो सम्मान के साथ जीना चाहिए। सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्डनेस को दूर करके समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, यही मकसद रखकर हमारी नीतियों के अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है कि हमको भारत को विश्वगुरु बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। और अगर ये बनाना है तो हमको पूरे भारत का विकास करना होगा। ये नहीं होगा कि कुछ राज्य केवल प्रगति और विकास में आगे जाएंगे और कुछ पीछे रह जाएंगे, तो ये नहीं होगा।
इसलिए एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट 120 डिस्ट्रिक्ट को जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है उनका विकास की योजना बनाई गई। 550 जो ब्लॉक्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है उनके विकास की योजना तैयार हुई। और मैं ये मानता हूँ कि ग्रामीण, रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल इंडिया का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं पिछले अनेक सालों से ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में काम करता हूँ, किसानों में काम करता हूँ, और इसलिए मुझे विश्वास है कि हमें केवल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को विकसित करके नहीं चलेगा। हमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान का अगर कल्याण करना है तो जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित हमारी इकोनॉमी को, रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल इंडिया को भी गति से विकसित करना होगा। ये जो अंधेरा है उसको हटाना होगा और प्रगति और विकास की ओर जाना होगा। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे जीवन की शुरुआत स्टूडेंट लीडर से हुई थी। तो मैं ABVP का कार्य करता था, कभी आसाम में, गुवाहाटी, इधर उधर आता था। उस समय हमारा एक प्रोजेक्ट था, मेरा घर भारत देश, और नॉर्थ ईस्ट के लड़के उस समय मुंबई में, महाराष्ट्र में, नागपुर में हमारे यहाँ रहने के लिए आते थे, ताकि कोशिश ये थी कि उनको ये लगे कि ये देश हमारा है। और जब बातचीत होती थी तो उनको मन में ये भाव रहता था कि हमारे यहाँ कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है। मुंबई, दिल्ली का विकास हो रहा, हमारे यहाँ रोड नहीं, रेलवे नहीं, एयरपोर्ट्स नहीं। तब ये मेरा घर भारत देश, ये प्रोजेक्ट में काम करते हुए तब से मैंने महसूस किया था कि जब विकास अगर समतोल नहीं होता तो जो विषमता जहाँ रहती है वहाँ कहीं ना कहीं नाराजी निर्माण होती है। ये इससे रिमोट विलेजेस इन वेस्ट गारो हिल्स, इन साउथ गारो हिल्स नियर द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, ये बहुत उपयोगी होगा। गुवाहाटी वाया डायनाडुबी, ये भी कनेक्टिविटी मिलेगी। और रानीखोर इन साउथ वेस्ट खासी हिल्स, ये भी कनेक्टिविटी मिलेगी। दालू से बागमारा 4 आवर्स से 2 घंटे हो जाएगा, और बागमारा से दारूगिरी 4 घंटे से 2 घंटे हो जाएगा। फिर 4 लेन ग्रीनफील्ड शिलोंग टू सिलचर 165 किलोमीटर, ये 23,000 करोड़ का ऑलरेडी प्रोजेक्ट है। बिड्स इनवाइट किए गए हैं। जैसे भी आप लैंड एक्विजिशन करके देंगे, ये भी हम लोग तुरंत काम शुरू कर देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। फिर जोराबाट से बारापानी 66 किलोमीटर, ये 8,500 करोड़ का है। इसका भी DPR अंतिम स्थिति में है। अगर लैंड एक्विजिशन हो गई तो इसी साल हम इसको शुरू करेंगे। गुवाहाटी जोराबाट विथ शिलोंग बारापानी, ये लेंथ रिड्यूस फ्रॉम 100 किलोमीटर टू 66 किलोमीटर, ये भी बहुत उपयोगी होगा। इट विल बिकम ए कंटिन्यूड ग्रीनफील्ड स्ट्रेच ऑफ गुवाहाटी शिलोंग सिलचर। Distance from Guwahati to Silchar will be reduced from 330 किलोमीटर to 230 किलोमीटर। तो इसीलिए मैं वो एयरपोर्ट वालों को कह रहा था कि 1 घंटे के अंदर अगर यहाँ से गुवाहाटी जाएंगे तो यहाँ का हवाई जहाज़ गुवाहाटी के लिए कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि वो चले जाएंगे। अब कभी कभी मैं भी ये अच्छा काम करता हूँ कि गलत करता मालूम नहीं। अभी दिल्ली से देहरादून फ्लाइट थी, बंद हो गई, 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में रोड बन गया। मुंबई से पूना, तो यहाँ 8 फ्लाइट थी जेट एयरवेज की, तो हाईवे बनाया हमने तो फ्लाइट बंद हो गई। अभी चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में हो रहा है, फ्लाइट बंद हो गई, हो जाएगी। मैसूर से बेंगलोर तो अब पर फ्लाइट बंद हो जाएगी, तो भी यहाँ से डायरेक्ट देश भर में तो जाएगी। तो ऐसा कोई नहीं कि यहाँ से नज़दीक वाली फ़्लाइट ज़रूर बंद होगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, शिलोंग, सिलचर, ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी यहाँ के टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देगी। Meghalaya Post.news